اور خبر تفصیل سے میرپورہ اشموجے کلگام میں آج سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئی جھڑپ میں حزب المجاہدین سے وابستہ ضلع کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ اس کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی ضبط کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق آج بعد دوپہر علاقے میں ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی، جس کے فوراً بعد ایک انکاؤنٹر شروع ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملیٹنٹ کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کی شناخت حزب المجاہدین سے وابستہ ضلع کمانڈر مدثر جمال وگے کے طور پر ہوئی ہے، جو کہ 2018 سے سرگرم تھا۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ کیا اور تلاشی کارروائی جاری ہے۔ آخری اطلاعات ملنے تک سیکیورٹی فورسز علاقے میں مزید ملیٹنٹوں کی تلاش میں لگی ہوئی تھی۔ سوپور میں بس اسٹینڈ کے قریب سیکیورٹی فورسز کے بنکر کے نزدیک دھماکے جیسی آواز سنی گئی۔ آج تقریباً دوپہر 1:30 بجے یہ واقعہ رونما ہوا۔ دھماکے کی آواز سنتے ہی لوگ محفوظ جگہوں پر چھپنے کے لیے بھاگے۔ علاقے میں سڑک پر ٹریفک کی نقل و حرکت کچھ دیر کے لیے روک دی گئی تھی۔ واقعے کے فوراً بعد پولیس اور CRPF کے علاوہ فوج موقع پر پہنچ گئی اور کچھ دیر تک پورے علاقے میں تلاشی لی۔ اس واقعے میں کسی طرح کے جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تمام زاویوں سے جانچ میں جٹی ہے تاکہ یہ پتہ لگا جا سکے کہ آیا یہ گرینیڈ حملہ تھا یا کچھ اور۔ دھماکے کی آواز آنے کے کچھ دیر بعد علاقے میں معمولات زندگی بحال ہو گئی اور علاقے سے متصل سڑک پر آمد رفت بھی معمول کے مطابق بحال ہو گئی ہے۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ زرعی قوانین کی جس طرح واپسی ہوئی اسی طرح ایک دن دفعہ 370 اور 35 سے واپس ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جب بھی کوئی انصاف کی بات کرتا ہے تو اسے ڈرایا جاتا ہے۔ PDP صدر محبوبہ مفتی آج کپواڑہ میں میڈیا نمائندوں سے بات کر رہی تھی۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے ہند پاک کو آپس میں بات چیت کا عمل شروع کرنا چاہیے۔ انہوں نے حیدرپورہ انکاؤنٹر میں مارے گئے ایک اور شہری کی لاش لواحقین کو واپس کرنے کی مانگ کی۔ محبوبہ مفتی نے آج کپواڑہ میں مرحوم پیر شمس الدین صاحب کے گھر جا کر لواحقین کی ڈھارس بندھائی۔ اس دوران انہوں نے ڈاک بنگلو کپواڑہ میں بھی PDP ورکروں سے بات چیت کی۔ بہت برا ہوا، ظلم کی انتہا ہو گئی اور اس کی ذمہ داری جو یہاں کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہیں ان کو لینی چاہیے، کیونکہ وہ یہاں جو نظام ہے، جو انتظامیہ ہے اس کے سربراہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دلی میں سرکار ہے اس کے بھی وہ نمائندے ہیں یہاں پر۔ تو یہاں کے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس میں کوئی اس قسم کا ثانیہ ہو جاتا ہے جہاں پر 3 ہمارے بے قصور انوسنٹ سویلینز مارے گئے اور ان کے بعد ان کو OGW کا نام دیا گیا، ہائیبریڈ ملیٹنٹ کا نام دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی لاشوں کے لیے ان کے گھر والوں کو بھیک مانگنی پڑی، اور ابھی تک جو عامر ماگرے ہے جو ایک بہت ہی غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے، جس کے باپ کو ملیٹنٹ مارنے کے لیے ایوارڈ بھی ملا ہے، اس کی لاش ابھی تک اس کے گھر والوں کو نہیں ملی۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کے ظلم و ستم سے جموں کشمیر میں حالات سدھریں گے نہیں بلکہ اور بگڑ جائیں گے۔ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جنرل سیکریٹری محبوب بیگ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے خواہش کی ہے کہ وہ حیدرپورہ انکاؤنٹر معاملے میں مداخلت کریں۔ محبوب بیگ نے آج سری نگر میں پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے ذریعے انکوائری کو مسترد کر دیا۔ پرائم منسٹر کو انٹروین کرنا چاہیے۔ پرائم منسٹر کو ہم یہاں آ کے ان کے ساتھ ہمدردی جتانی چاہیے، یا وہاں سے ہی وہ بولیں، ہم پورے لوگوں کو بولیں، پورے سوسائٹی کو ایڈریس کریں اور یہ اعتبار دلائیں کہ ایسے جو واردات ہیں، ایسے جو سانحے ہیں کبھی نہیں ہوں گے۔ وہ ان انکوائریز سے بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ یہاں اعتبار ٹوٹ گیا ہے۔ اس اعتبار کو بحال کرنے کے لیے پرائم منسٹر کے 2 لفظ کہ ایسے جو وارداتیں ہیں کبھی نہیں ہوں گے، وہ زیادہ ہمارے زخموں کو مرہم کریں گے دین دیز فارمل انکوائریز لائک میجسٹیریل انکوائری اور جوڈیشل۔ محبوب بیگ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم زرعی قوانین کی طرز پر جموں کشمیر اور لداخ کی خصوصی حیثیت کو بھی بحال کر دیں۔ یہ رائے درست ہے۔ کل پرائم منسٹر نے بتا دیا نہیں،
पार्लियामेंट कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है। पार्लियामेंट की जो मेजॉरिटी है, अगर उसमें कानून बनते भी हैं, अगर वो लोगों को तस्लीम नहीं होंगे तो वो वापस भी लिए जा सकते हैं। उससे हमारी उम्मीदें बढ़ गई। जिस तरह कि पूरे कश्मीर में ही नहीं, आज आप जम्मू में बात कीजिए, आज आप लद्दाख में बात कीजिए, यूनानिमस है बाय एंड लार्ज। वो शायद आर्टिकल 370 नहीं कहेंगे, 35 नहीं कहेंगे, मगर जो उसकी रूह है आज वो वहाँ भी फील हो रही है और लद्दाख में भी फील हो रही है। जैसे कल कानून मनसूख हुए, बिल्कुल उस तरीके से वो कानून भी मनसूख होने चाहिए, ताकि कश्मीरी का, जम्मू का, लद्दाख का एतबार वापस आ जाए, जो एतबार इस वक्त बिल्कुल टूट चुका है। सरपुरा संगलदान के मोहम्मद आमिर मागरे की लाश लवाहिकीन के हवाले करने का मुतालबा किया जा रहा है। रामबन में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने इस ज़िम्न में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि लाश न देने की सूरत में वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। शमशाद शान ने कहा कि 2 आम शहरियों की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गईं, ताहम उनके हल्के संगलदान से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर अहमद मागरे की लाश अभी तक वारिसीन के हवाले नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि हैदरपुरा इनकाउंटर के बाद लाश को वारिसीन के हवाले करने की उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह से गुजारिश की थी। चेयरपर्सन, मैंने दूसरे ही दिन जो है डीजी साहब से रिक्वेस्ट की थी इस मसले में कि वो जहाँ तक उनकी पेरेंट्स हैं या उनके रिलेशंस हैं, मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि वो फैमिली जो है वो नेशनलिस्ट फैमिली रही है, देशभक्त रही है, और उन्होंने हर वक्त जो है मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ा है, जो कि आप लोगों के सामने भी उसका एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही उनको एक ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा है और अभी तक उनको जो है अंडर सिक्योरिटी कवर रखा गया है 12-13 साल से। लेकिन उसके बावजूद भी ये समझना मुश्किल है कि उनका ही बेटा इस वक्त जो है टेररिस्ट करार दिया गया है। लेकिन जिस तर्ज पे उन्होंने कश्मीर की 2 बॉडी जो है लवाहिकीन को हवाले की, हम भी चाहते हैं कि उसी तर्ज पे हमारी जो सिविलियन की बॉडी है उसको लवाहिकीन के हवाले किया जाए, ताकि वो आखिरी रसूमात जो हैं अपने घर में लाके अपने होम टाउन में उसका करे। तो कानून अपना काम करे, हम कानून के साथ हैं। हम तो चाहते हैं इंक्वायरी हो और सच सामने आए। अभी तक इतनी नाउम्मीदी हमें नहीं है, हमें एलजी साहब पे पूरा भरोसा है और उनके डिसीजन का हम वेट कर रहे हैं। कहीं ऐसा होता है कि कोई डिसीजन नहीं आता है तो उस सूरत में हम जो है जरूर हमें जो है मजबूर होना पड़ेगा प्रोटेस्ट में जाने के लिए। पीडीपी जिला रामबन के तर्जुमान तारक सलीम मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि मोहम्मद आमिर की लाश को भी वापस किया जाए, ताकि शेरपुरा संगलदान में उनकी आबाई कब्रिस्तान में उसे सपुर्द लहद किया जा सके। आमिर था वो एक वहाँ पर प्राइवेट जॉब कर रहा था, और अगर ये सारी बातें सही हैं तो हमारी गुजारिश रहेगी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी जो है गवर्नमेंट से, कि उनकी जो लाश है वो जो यहाँ के लवाहिकीन को हवाले की जाएं। भारतीय जनता पार्टी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हैदरपुरा सिविलियन हलाकतों की तहकीकात में एलजी इंतजामिया की पेशरफ्त काबिल इत्मीनान है और आवाम को भी तहकीकात पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इनकाउंटर के दौरान मारे गए गोलरामबन के आमिर भी बेगुनाह साबित होते हैं तो उनको भी ज़रूर इंसाफ मिलेगा। ज़रिए क़वानीन की मनसूखी पर हिज़्ब इख्तिलाफ के दलीलों को उन्होंने बेजा करार देते हुए कहा कि इसे वज़ीर आज़म की दूरअंदेशी फिर एक बार साबित हुई है। जी मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बिना कोई सबूत ऐसा फैसला लिया। उन्होंने डेड बॉडीज़ जो है फैमिलीज़ को वापस दी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के उस नज़रिया को देखा, उसको देख के उन्होंने डेड बॉडीज़ को वापस कराया। और दूसरा जो उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है, उसमें जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, ये हमारे मनोज सिन्हा जी ने कहा, उनको हम सज़ा देंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बट मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, जो उन्होंने वहाँ पे एक तश्कील दिया, एक टीम दिया है, उनको कहें कि जल्द अज जल्द अवाम के सामने ये सारा आना चाहिए। कांग्रेस लीडर सलमान निजामी ने आमिर मागरे की लाश वर्सा को दे देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अजीज व अकारिब उसकी इज्जत और एहतराम से तदफीन करने के मुतमन्नी है। गूल से गरीब शख्स जिसका नाम आमिर है, वो
हैदरपुरा में एक नौकरी करता था एक सेल्समैन की हैसियत से, और आमिर के घर वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आमिर किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या मिलिटेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था या साथ था उनके, क्योंकि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे साफ होता है कि वो नेशनलिस्ट बैकग्राउंड का है। हम गवर्नर इंतजामिया से पूछना चाहते हैं कि आमिर जो है गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है, गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। गूल जो डिस्ट्रिक्ट रामबन का एक दूर दराज इलाका है, क्या उनके परिवार वालों को भी श्रीनगर में आके प्रोटेस्ट करना पड़ेगा? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि वो आए, धरने पे बैठे, फिर उनको आप डिटेन करेंगे, फिर उन पे आप लाठियां चलाएंगे, उनको घसीटेंगे? रहम खाइए, शर्म करिए। उसकी मां की हालत क्या है, उसकी बहन की हालत क्या है? मैंने विजुअल्स देखे, वीडियोस देखे। जम्मू कश्मीर की कुछ सियासी पार्टियों ने साबिका रियासत के खुसूसी दर्जे की बहाली का मुतालबा फिर से दोहराना शुरू कर दिया है। साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल करने की मरकजी हुकूमत के सामने मांग रखी है। ये मुतालबात वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से मुतनाज़ा ज़र क़वानीन की मनसूखी के ऐलान के फ़ौरन बाद सामने आए हैं। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। पार्टी का कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A अब क़िस्सा पारीना बन चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से अपने खिताब में मुतनाज़ ज़र क़वानीन की वापसी का ऐलान करके सबको हैरत में डाल दिया, क्योंकि किसान और अपोजिशन एक साल से ज़र क़वानीन के खिलाफ सरापाए एहतजाज बने हुए थे। जैसे ही मोदी हुकूमत ने अपने बनाए हुए ज़र क़वानीन को वापस ले लिया तो जम्मू कश्मीर की इलाकाई पार्टियों ने दफ़ा 370 और 35A की बहाली के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी। साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले दोनों क़वानीन को मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मनसूख कर दिया था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मोहम्मद यूसुफ तारिकामी जैसे लीडर आइन का हिस्सा रहे आर्टिकल 370 को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। किसानों के दिल की आवाज सुनकर ज़र क़वानीन को मनसूख करने पर जम्मू कश्मीर के इन लीडरान ने हुकूमत की सताइश की है। अब मोदी हुकूमत से ख्वाहिश की गई है कि वो कश्मीरियों की आवाज सुन ले और खुसूसी मौक़िफ़ को बहाल करने का जुर्रतमंदाना फैसला ले। आज तो जम्मू के अंदर भी लोग महसूस करते हैं कि उनको ठगा गया है। 370 हटाना, 35A को हटाना रियासत के साथ खिलवाड़ करना है, और हो गया है, खिलवाड़ कर दिया गया है। अब लोगों को महसूस हो रहा है कि ये गलत हुआ है। फार्म्स लॉ को साल के बाद, साल से ज़्यादा वक्फा हो गया और उसके बाद उन्होंने वापस कर दिया। और जो हमारे लीडरान हैं उन्होंने लिखा है, तो वो भी हो सकता है अगर ये करना चाहें, क्योंकि किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ जब की जाती है वो ज़बरदस्ती तो नहीं ना होनी चाहिए। बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें, जैसे फार्मर्स का किया है। उससे बड़ा अमन होगा स्टेट में। जो हलचल मची हुई है उससे भी फ़र्क पड़ेगा। ये तो इलीगली उन्होंने पास करके उस वक्त रातों रात कर दिया था, तो ये किसी ने, पूरी सरकार जम्मू और कश्मीर के किसी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है इसको। और ना ही जो उन्होंने सवारी बाग दिखाए थे, दूध की नदियाँ बह जाएगी, ना ही वो आप ही देख रहे कि यहाँ कोई नहीं बही, और उल्टा काम खराब हुआ। सारा स्टेट हमारी डिस्टर्ब चली हुई है। कोई सुनाई नहीं है, कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, कोई MLA नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, किसके पास लोग जाएं? ज़र क़वानीन को दफ़ा 370 से जोड़ने के गुपकार अलायंस के पैंतरे ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। हालांकि बीजेपी के लीडरान ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल पार्टियों को ये समझना चाहिए कि ज़र क़वानीन की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसीलिए PDP और NC अपने अंदाज में अंदाजे लगाना छोड़ दें और दबाव डालने से बाज रहें। हिंदुस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए कुछ जो ग्रेटा थनबर्ग और मियाँ खलीफा द्वारा टूल किट जारी की गई थी, उसी के आधार पर यहाँ हिंदुस्तान में माहौल ख़राब करने की कोशिश करते रहे। बाकी जहाँ तक PhD का सवाल है, ये चीज़ों को भूल जाएं। आपकी गलतियों के कारण से जम्मू कश्मीर की तबाही हुई है, लेकिन ये मोदी जी का बड़ा दिल है
कि किसानों के लिए उन्होंने कहा कि मिल बैठ करके इसको करेंगे, और इसकी बात की है। जहाँ तक 370 और ये अलग अलग मुद्दे हैं, इसके बारे में उनको इसकी बात ना तो सोचनी चाहिए, ना होगी ना करनी है। तो 370 हिस्ट्री है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था, उसको हमने हटाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। तो इनको क्यों आशा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हुए हैं, क्या वहाँ से निकलता है। कभी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, कभी ऐसी बात करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग सही मायने में इन लोगों से दुखी थे। दरियास्ता सियासी माहिरीन मानते हैं कि मोदी हुकूमत के फैसले ने एनसी, पीडीपी और दीगर पार्टियों को एक सुनहरी मौका फराहम किया है। उनका कहना है कि ये पार्टियां जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने तक अपने मुतालबे पर अटल रहेंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फार्म्स बिल के साथ कहीं रिलेट नहीं करती हैं, लेकिन इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के पास जाना है पीएचईडी ने और सारी जमातों ने, तो क्या लेके जाएंगे। वो यही प्लैंक है कि आर्टिकल 370, 35A और स्टेटहुड की बात करते हैं, और स्टेटहुड के लिए ऑलरेडी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने एग्री किया हुआ है कि जिस वक्त हालात फिजिबल होंगे स्टेटहुड वापस दी जाएगी। आगे चलकर इस बात की गारंटी है कि दफ़ा 370 और 35A एक बड़ा इशू बन के उभरा है, और आगे की राजनीति भी जम्मू कश्मीर की इसी मुद्दे पर होने वाली है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की शनाख्त और रियासती दर्जे की बहाली के लिए किसानों की यकजहती की तर्ज पर यहाँ के हम ख्याल सियासी जमातों को यकजा होने की ज़रूरत है। अनंतनाग के अमूह वेरीनाग में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के बाद मीर ने कहा कि आवामी ताकत के बल पर जिस तरह से वज़ीर आज़म ने ज़रूरी क़वानीन को वापस लिया, उसी तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम को एक ज़बान होकर अपना हक़ तलब करना होगा। इस मौके पर कांग्रेस के कई लीडरान ने खिताब किया और कहा कि कांग्रेस ज़मीनी सतह पर मुस्तहकम है और ये वाहिद ऐसी जमात है जो मुल्क में बीजेपी की आवाम दुश्मन पॉलिसियों की मुखालफत में खड़ी है। 14 से लगातार देख रहे हो, देश को बांट के, फिरकों में बांट के वो अपनी कुर्सी कायम रखता है, और वही सारा उनको बेनिफिट भी जाता है जब हम बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने कल भी अपील की कि जिस तरह से किसानों ने एक यूनाइटेड फाइट दी, कितनी भी कोशिश उनको डिवाइड की थी, कितने नाम दिए, ये टेररिस्ट है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, मगर उनकी यूनिटी में ज़रा सा भी खलल नहीं आया। उस यूनिटी ने इतनी बड़ी मोटी सरकार को कंपेल किया कि उसको वापस वो कानून लेने पड़े। जम्मू कश्मीर के बारे में भी उनकी यही पॉलिसी है, कभी जम्मू को कश्मीर के साथ लड़ाना, कश्मीर को दूसरे खिते के साथ लड़ाना, फिर आपस में फिरकाबंदी करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपस में डिवाइड करना। तो हमने इसीलिए कल इशारा दिया था कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ है वो इस बड़े मसले को लेकर आवाम को ऑन बोर्ड ले और कहीं इकट्ठे बैठें, और एक ही रास्ता वही है जिस रास्ते को मोदी साहब समझते हैं, जिस रास्ते को मोदी अंडरस्टैंड करता है, वो वही रास्ता है। अगर बैठे सारे लोग, क्योंकि खामोश आवाम है, ये खामोशी भी मैंने कहा था ये भी एक किस्म का प्रोटेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि लोग धरना प्रदर्शन करें, ज़रूरी नहीं लोग आज लाठी चलाए, मगर जो 1 करोड़ 30 लाख लोग एक सदमे में हैं, कठुआ से लेकर कुपवारा तक, सिर्फ इस बात के लिए कि हमने कौन से गुनाह किए थे, हमारा स्टेट बाइफरकेट किया। जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 10वें के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। पूरे कश्मीर में आज कोविड गाइडलाइंस का लिहाज करते हुए इम्तिहान लिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में दरकार बंदोबस्त करने की हुक्काम ने बात कही है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इम्तिहान कराने के लिए 739 मराकज़ कायम किए गए। 74,000 तलबा और तालिबात ने इम्तिहान देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। हीटिंग के लिए भी खुसूसी इंतजामात करने का मुतल्लिकीन ने ऐलान किया है। 2 सेंटर हैं, तकरीबन 200 अबव स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हमने पूरी तरह से कोशिश की है कि जो भी SOPs हैं उनको फॉलो किया जाए। तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही है। थोड़ी कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स हो गई है प्रेपरेशंस में, लेकिन हमने कर लिया मैनेज किसी तरह। तो अब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अंदर। आज हमारा SST पेपर है, पहला पेपर है, इसलिए आए हो यहाँ पेपर देने। एक्साइटमेंट बहुत है और थोड़ा नर्वसनेस भी है। तो पहला पेपर है। 30% रिलैक्सेशन दी गई थी, तो हमें मगर अटेम्प्ट करना था 70%।
तो हम बहुत खुश हैं कि आज एसएसटी का पेपर, पहला पेपर शुरू। नेशनल और इंटरनेशनल फुटबॉलर्स फोरम J&K का कहना है कि फुटबॉल एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम के लिए हरियाणा और दीगर जगहों से खिलाड़ी ट्रायल्स और कैंप के लिए बुलाए गए हैं। इस तरह के इक़दामात को उन्होंने गलत करार दिया। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बशीर अहमद मलिक और अंदुल अहमीद बांडे ने कहा कि यूटी के बाहर के खिलाड़ी कैसे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर सकते हैं। ये है कि हरियाणा से प्लेयर्स को ट्रायल्स के लिए बुलाया है, जिसके लिए हमारी जो लोकल जम्मू कश्मीर की लड़कियां वो इग्नोर हो रही है। इसमें हमने जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के लोगों से ये बात पूछी है क्या माजरा है, तो उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से हमारी टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है नेशनल इवेंट्स में। अगर पिछले साल हमारी नेशनल इवेंट्स में परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, पिछले साल से आज तक हमने क्या किया, हमें डेवलप करना था, हमें वो माहौल बनाना था जिसमें हम अपनी स्टेट की टीम को, अपने प्योर जम्मू कश्मीर स्टेट के प्लेयरों को उस नेशनल चैम्पियनशिप में भेज देते। इसलिए हम उसी के लिए आए हैं यहाँ पे कि हम किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते हैं कि आउटसाइड स्टेट कोई भी प्लेयर हमारी स्टेट की तर्जुमानी करे। नौगाम बानीपुरा में मेगा एनरोलमेंट ड्राइव का इनेकाद किया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जिले में यह मुहिम शुरू कर दी है। अभी तक 250 स्टूडेंट्स का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया गया। इस सिलसिले में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नौगाम में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर ने इस प्रोग्राम की सदारत की। इस मौके पर चीफ एजुकेशन अफसर बानीपुरा अब्दुल रऊफ के अलावा ZEO समुल और इलाके के दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। तसद्दुक हुसैन ने मीडिया को बताया कि महकमे तालीम में बड़े पैमाने पर तबादले किए जाएंगे ताकि वो असातिज़ा जो बरसों से ट्रांसफ़र नहीं हुए उनका जल्द तबादला हो सके। म्यूनिसिपल कमेटी कुंजर के चेयरमैन व कोऑर्डिनेशन कमेटी अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर लद्दाख के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल करीम डार ने गुज़श्ता साल सरकार की जानिब से चलाए गए माई टाउन माई प्राइड पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डार का कहना है कि गुज़श्ता साल यूटी सरकार ने कश्मीर में माई टाउन माई प्राइड के प्रोग्राम चलाए, जिसमें टाउन के अंदर लोगों के दरपेश मसाइल और मुश्किलात के इजाले के लिए निशानदही की गई थी, ताहम आज तक इनमें से कोई भी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कुंजर में तामीर शुदा फिल्ट्रेशन प्लांट से पीने का पानी फिल्टर करके लोगों को फराहम किए जाने का वादा किया गया था, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया। लोग भी इस काम को मुकम्मल न करने पर सरकार के खिलाफ बरहमी का इजहार कर रहे हैं। डार ने इस मसले को हल करने की अपील की। 1 साल हुआ, आज तक कुंजर टाउन के लोगों के लिए फिल्टर्ड पानी डिपार्टमेंट ऑफ जो अपने PHE है उन्होंने फराहम नहीं किया। ये जो सरकार LG गवर्नमेंट ये बोलते हैं माई टाउन माई प्राइड में जो वादे करते हैं हम उस पर अमल करते हैं। मैं अपनी कुंजर टाउन की ही बात करूंगा, जो उन्होंने वादे किए, सरकार ने वादे किए, वो तो पूरे। हमको बचानी है ये जिंदगानी। We the people of India pledge to strive for cleaner and healthier world, to protect ourselves from disease, to have sustained sanitary habits, to have access to clean toilets and water for all our citizens. आलिम दीन शेख हसन वाइजी का मुख्तसर अदालत के बाद कल शब इंतकाल हो गया। शेख हसन वाइजी हंदरमानी साबिक में हौजा इल्मिया मदरसे इसनाशरिया करगिल के काजी रह चुके थे। वो इस्लामिया स्कूल के मुतवल्ली थे। मरहूम शेख हसन वाइजी कई साल से पोयन में आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर थे और यहाँ मस्जिद के इमाम थे। दरअसल वो इस्लामिया स्कूल करगिल के इमाम जुमा थे। मरहूम के जुलूस जनाजा में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। शेख मोहम्मद हसन वाइजी की रहलत पर लद्दाख के तूलो अर्ज से और जम्मू कश्मीर से भी हज़ारों लोगों ने ताज़ियती पैगामात भेजे हैं। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन के इंतखाबात मुनक्किद कराए गए। उसांग लुआंग एसोसिएशन के सदर मुंतखब किए गए हैं। इस ओहदे के लिए 18 नामजदगियां मौसूल हुई थीं, तहम आखिर में 2 ही उम्मीदवार मैदान में रह गए थे। ज़ंस्कार के तमाम 25 नंबरदारों को इंतखाबी अमल में शामिल किया गया। कुल 24 वोट थे, लेकिन 16 वोट पड़े और 16 के 16 वोट उसांग लुआंग के हक में आए। जम्मू में कांग्रेस के कारकुनों ने मोदी हुकूमत की तरफ से तीनों ज़रूरी कवानीन की मनसूखी का जश्न मनाया। विजय दिवस के उन्वान से यहाँ जम्मू में इस तरह खुशी मनाई गई
इन कारकुनों ने मुतनाज़ा कवानीन मनसूख होने का पूरा क्रेडिट किसानों को दिया और इस ज़िम्न में ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी की काविशों की खूब सताइश की। इस मौके पर कांग्रेस लीडरों ने कहा कि मोदी हुकूमत ज़रई कवानीन को मनसूख करने पर मजबूर हुई क्योंकि किसानों के ज़बरदस्त गुस्से की वजह से वो तेज़ी से अवाम में अपनी बुनियाद खो रही है। दौरान एहतजाज जाने गंवाने वाले किसानों के ख़ानदानों को मुकम्मल मुआवजा देने का मुतालबा भी किया गया। पिछले एक बरस से पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से माहौल बना, लोग जागृत हुए, किसानों का आंदोलन पिछले कम से कम 390 के करीब दिनों से ये चल रहा है। दिल्ली को यूपी की बॉर्डर से, हरियाणा के बॉर्डर से तारों को घेर के रखा था। दूसरी तरफ कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर और अपोजिशन पार्टियां पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बिल का विरोध कर रही थी। हमारे बीच में हमारे साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो अर्थशास्त्री माने जाते हैं, उनका भी यही कहना था कि ये जो काला कानून है सरकार को इतनी जल्दी लागू नहीं करना चाहिए। और उन्होंने अब देखा इस सरकार ने कि जो हमारी हालत हुई पूरे हिंदुस्तान के बाई इलेक्शन में, सरकार को झुकना पड़ा। कांग्रेस लीडर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने मरकजी हुकूमत की जानिब से तीनों ज़रई क़वानीन वापस लेने पर मुल्क के किसानों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि किसानों के पुरअमन और लगातार जद्दोजहद की वजह से हुकूमत किसानों के मुतालबात मानने पर मजबूर हो गई और इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई कि पुरअमन और लगातार जद्दोजहद से अवाम अपने मुतालबात मनवा सकती है। प्रोफेसर इस्माइल आशना ने ज़रई क़वानीन पर कांग्रेस क़यादत के मौक़िफ़ और किसानों की हिमायत करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुतवातिर और लगातार जो कशमकश जो जद्दोजहद भारत के किसानों ने की पुरअमन तौर पर, उसका समर उन्हें मिला कि एक हुकूमत, एक मजबूत तरीन हुकूमत उनके सामने झुक गई और उनकी जद्दोजहद का, कशमकश का एहतराम किया। हुकूमत मेवा सनत को फ़रोग़ देने के लिए पुलवामा की मेगा फ्रूट मंडी को मुल्क की बेहतरीन मंडी बनाएगी। LG के मुशीर फारूक अहमद खान ने आज पुलवामा दौरे के दौरान ये ऐलान किया। इससे कबल LG के मुशीर ने पुलवामा की पेरिचो फ्रूट मंडी का तफसीली मुआयना किया। फारूक अहमद खान ने मंडी में फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के ऑफिस का इफ्तिताह किया। मुशीर LG ने पुलवामा फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के मेंबरान के साथ मीटिंग भी की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि मंडी में तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर अंजाम दिए जाएंगे। और बाकी जो सिलसिला था वो अच्छी बात है कि अभी तक नहीं हुआ था, वरना ये मंडी फ्यूचर के लिए सूटेबल मंडी कभी ना बनती। अब हमने इसका देखा है और बातचीत भी हुई है और हम मिलजुल के, सरकार और जो यहाँ की एसोसिएशन है वो सब मिलजुल के, हम DC साहब की वसातत से और हमारे जो DDC के मोतबर मेंबरान हैं, चेयरपर्सन हैं, उन सब से मिलकर हम इस मंडी को जो फ्यूचर में जो हमारा इसका प्लान है हार्टिकल्चर का, उसके हिसाब से आज की पैदावार के मुकाबले में 400% पैदावार और हो जानी है। तो ये मंडी आज की डेट में टाइट मंडी हो रही है, तो कल क्या होगा? तो हम इसी सिलसिले में ये बात करने के लिए आए थे और मुझे खुशी है कि जो मंडी की एसोसिएशन है वो भी इस बात को समझती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग और ENT शोबे के इश्तराक से अपनी नौयत का पहला लाइव ENT सर्जिकल वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। वर्कशॉप में डॉक्टरों और दीगर मुतल्लिकीन की एक खासी तादाद ने शिरकत की। सेशन में इंडोस्कोपिक सेंस सर्जरी का आगाज़ किया गया, जिसमें पेचीदा जराही को अंजाम देने में कामयाबी हासिल हुई। तकरीब में जम्मू कश्मीर के तमाम मेडिकल कॉलेजेस से माहिर डॉक्टरों ने शिरकत की, जबकि इस तरह के वर्कशॉप्स को मेडिकल साइंसेस के लिए एक संगमील करार दिया गया। बहुत दुख होता था जब हम कोई पेशेंट बाहर रेफ़र करते थे किसी सिंपल सर्जरी के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है। जो नाक की एडवांस सर्जरी, जो एंडोस्कोपिक सर्जरी सारी होती है पूरे वर्ल्ड में, वो अब आपके यहाँ डोर स्टेप में अपने हॉस्पिटल में पॉसिबल है। जो सबसे डिफ़िकल्ट केसेस होंगे वो आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक पूरी वैली में सिर्फ नेविगेशन सिस्टम हमारे GMC मेडिकल कॉलेज में था श्रीनगर में, बट नाउ अब हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है GMC अनंतनाग में, एंड दिस इज़ अ वंडरफुल इक्विपमेंट जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इक्विपमेंट का ये फ़ायदा है कि इन पेशेंट्स को
अब अभी तक जो सर्जरी हम नाक की करते थे उसमें रिस्क ऑफ सर्जिकल रिस्क रहता था, क्योंकि जैसे आपको पता है नाक के इमीडिएट नेबर्स आँख है और ऊपर से ब्रेन है, तो टू प्रिवेंट इंजरी टू दोज थिंग्स दिस हैज़ अ वेरी हाई वैल्यू। और इसमें ये ख़ास कर उन पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही मुफीद है जिनमें रिवीजन सर्जरीज होंगी, जिनको प्रीवियसली सर्जरी हुई होती है, जिनमें ज़्यादा डिजीज़ है, जिनमें बेस ऑफ स्कल पे डिजीज़ है, तो फुल एडवांटेज इसकी है। ये 64वीं ऑल इंडिया कोऑपरेटिव हफ्ते की अख्तामी तकरीब आज टैगोर हॉल श्रीनगर के अहाते में मुनक्किद हुई। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी के पुले और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जे के शफकत इकबाल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस हफ्ते तक जारी रहने वाली इस तकरीब के दौरान कश्मीर के मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के स्टॉल्स लगाए गए। हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है छोटी बड़ी रहती है, क्योंकि ये आप अगर सोचेंगे कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे मान लीजिए जो कश्मीरी जो ड्रेसेस बनाने वाली सोसाइटी आपने देखी, या मिल्क प्रोड्यूसर वाली देखी, या हमारी जो दूसरी एग्री इनपुट वाली जो सोसाइटी देखी, वो उतनी वाइब्रेंट नहीं रहेगी कि एक किसी प्राइवेट आदमी का एक बिजनेस रहेगा, क्योंकि इसमें कलेक्टिव है, 8-10 लोग मिनिमम रहते हैं। इवन कहीं 150-1000 भी लोग जो है इकट्ठा आकर के एक मूवमेंट चलाते हैं। उसमें कुछ खामियां रहती हैं, लेकिन आपके जरिए से मैं आपको कहूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके प्रोडक्ट्स को आप लोगों तक बताएं, उनकी जो अच्छाई जो चीजें हैं वो लोगों को बताएं, ताकि लोग जो है उसमें और जुड़ सके। जो मुद्दा और मकसद जो है हमारे जो इस ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक का, वो ये है कि हम अपना जो डिपार्टमेंट की या जो अपने हमारे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है, कॉर्पोरेशन है, उनके जो एक्टिविटीज हैं उनको शोकेस किया जाए। आपकी ज़मीन आपकी निगरानी के तहत टाउन हॉल कुलगाम में आज एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें रीजनल डायरेक्टर मराज डॉक्टर हफीज़ मसूदी ने मेहमान के तौर शिरकत की। ACR कुलगाम मीर इम्तियाजुल अजीज़ के अलावा महकमे माल के अफसरान समेत इलाके के लोगों, पंचायती राज नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद महकमे माल की जानिब से लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के अलावा मकान अराजी की आसान तरीके पर मालिकाना अराजी को आसान तरीके पर मालूमात हासिल करने के हवाले से जानकारी देना था। ज़िला रियासी के मशहूर मजहबी मकाम सिहाड़ बाबा को दोबारा शनाख्त दिलाने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। मकामी इंतजामिया और महकमे सेहत लाख दावे करे, लेकिन ज़मीनी हक़ायक़ अपनी असल तस्वीर बयान करते हैं। अरसे तक खस्ता हाल रहे इस मकाम की इंतजामिया की तरफ से अनदेखी अया हो चुकी है। इस मजहबी मकाम को साल 2018 में नुकसान पहुंचा था। यहाँ दरकार कामों के लिए टेंडर निकालने की तक जहमत नहीं की गई। चट्टान गिरने के वाक़े के बाद यहाँ किसी किस्म का सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है। हादसे में लोगों की जाने से कबल यहाँ हज़ारों सयाह आया करते थे। मैं मुंबई से आया हूँ अपने फैमिली के साथ यहाँ घूमने के लिए, यहाँ सिहाड़ बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे जब हम आए हैं तो काफ़ी चीज़ें हम ख़राब यहाँ देख रहे हैं। ना तो यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था है, ना पीने का पानी है ढंग का, ना कुछ इधर वॉशरूम नहीं है, मतलब और बाकी मतलब नीचे जाने के लिए पानी के पास नहीं दे रहे हैं। यही सब बहुत प्रॉब्लम है, पर बहुत अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे आए हम और ना कोई दुकानें हैं ना कुछ नहीं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ की प्रशासन ऐसा है कि किसी को इस चीज़ से कोई उम्मीद ही नहीं है। बारामूला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन्स में जश्न जम्मू कश्मीर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम ऐसे प्रोग्राम तमाम अजला में मुनक्किद किए जाएंगे। मकामी आर्ट और कल्चर को फ़रोग़ देने के मकसद से ये इक़दाम किए जा रहे हैं। गाँव जाके हम ये प्रोग्राम करेंगे। इसमें 20 डिस्ट्रिक्टों में हम ये कार्यक्रम करेंगे और जिसमें हम जम्मू कश्मीर की हर विधा को जोड़ेंगे, चाहे वो रुफ है, दम्बाली है, बच नगमा है, लड़ी शाह है, दलील है, डोगरी है, गोजरी है, हर विधा को हम इसमें जोड़ेंगे। बायो साइंसेस के मैदान में नुमाया काम करने पर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर M.K. धर को बवकार प्रोफेसर A.K. शर्मा अवार्ड से सरफराज किया गया है, जिस पर स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबरान ने प्रोफेसर M.K. धर की गुलपोशी की। इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स जम्मू की तरफ से ये तहनीत पेश की गई। इंस्टीट्यूट के अहाते में ही इन तकरीबात का इनेकाद किया गया। इदारे के फनकारों और फैकल्टी मेंबरान ने यहाँ म्यूज़िक कंसर्ट पेश किया। एहतमाम किया है और जिसमें रियासत के मायानाज गुलकार
दीपाली वातल और सूरज सिंह जी और राजकुमार भैरोपिया साहब ने सामीन को अपनी गज़लों से महसूस किया। इंफा की तरफ से पहली कोशिश है कि इस तरह की गज़ल महफ़िल गज़ल का इनेकाद करना, जिसका एक मकसद ये भी है कि सिविल सोसाइटी को हम इंफा के साथ जोड़ें, जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ें, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मिताली शर्मा का सुंदरबनी राजौरी पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जिन्होंने काठमांडू में हिंदुस्तान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के दरमियान बैनुल-अक़वामी रक़्स के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता था। लोगों ने कहा कि आज हमारी बेटी ने सुंदरबनी के साथ साथ मुल्क का नाम भी रोशन किया है। मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। मुझे मम्मा की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, मेरे मामू, मेरी मासी, ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा वो है मेरा स्कूल, क्योंकि ये इन्होंने बचपन से ही एक बूस्ट बनाए रखा मेरे अंदर और कभी भी मेरे टैलेंट को नीचे नहीं होने दिया, उसको एक अलग ही लेवल पर जाके पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी तक चला है, मैं एक हार्डवर्क जो चीज़ है, इतनी बड़ी सक्सेस के बाद कोई वो मुझ पर कहीं कम ना हो जाए। शोपियां कस्बे में मकामी लोगों ने बिजली के स्मार्ट मीटर नस्ब करने के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। बनागाम शोपियां में शोपियां श्रीनगर रूट को घंटों तक ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किया। बाद में तहसीलदार शोपियां और एसएच शोपियां की मदाखलत के बाद एहतजाज को ख़त्म किया गया। आरटीआई के जरिए हुए इंकशाफ के बाद समाजी कारकुन मोहित शर्मा ने कठवा के लगती के साबिक सरपंच और बिजली महकमे के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि एक तरफ हुकूमत तरक्की और रिश्वत से पाक समाज की बात करती है, दूसरी तरफ आरडीडी महकमे के एहलकार फर्जी बिजली बिल बनाकर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी सौरभ गौड़ ने पीएचसी बुनियार का दौरा किया ताकि महकमे सेहत की तरफ से इस दूर दराज के लोगों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया जा सके। उन्होंने पीएचसी बुनियार को हाईटेक एडवांस पीएचसी बनाने के लिए बीएमओ बुनियार और उनके अमले की काविशों को सराहा। सरप्राइज्ड बाय द विजिट टू द मिडिल स्कूल एट बुनियार, वहाँ पर जो खास तौर पे किंडरगार्टन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं, विच इज़ अ लोकल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, बड़ा अच्छा लगा वो गर्ल्स स्कूल में विजिट करके। एंड आई वाज एक्चुअली इवन मोर हैप्पी टू विजिट द पीएचसी एट बुनियार। टाउन हॉल बडगाम में आज डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी कश्मीर के सीईओ भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। मरकजी सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीम हाउसिंग फॉर ऑल प्रोग्राम में तो कई अफराद जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बैंक की जानिब से कई अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीईओ अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी कश्मीर ने यकीन दिलाया कि वो बैंक की जानिब से की जा रही ताखीर पर गौर करेंगे। मशहूर अल्ट्रा मैराथनर कुमार अजवानी ने अब समाजी कॉज के लिए 4,444 किलोमीटर दौड़ लगाने का आज़म किया। 61 बरस के कुमार अजवानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे। वो इस तरह जमा किए गए फंड से ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इस बार कुमार अजवानी माजूर फौजियों को मदद पहुंचाना चाहते हैं। जोन नाराबल के जोसेट के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के बच्चों और असातिज़ा ने सरकारी स्कूल में दाखिला लेने की बेदारी मुहिम के तहत एक रैली निकाली, जिसमें काफ़ी तादाद में बच्चों और असातिज़ा कराम ने शिरकत की। रैली के जरिए लोगों को आगाह किया गया कि वो अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं। गुज्जर बस्ती हजूनी तराल के लोगों ने आज इलाके में बुनियादी सहूलियात न होने पर एक खामोश एहतजाज किया। इन लोगों का कहना है कि वो यहाँ पिछले 15 सालों से मुकीम हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इन्हें अभी तक बिजली, पानी और सड़क जैसे अहम सहूलियात से महरूम रखा है। उन्होंने इस हवाले से मदाखलत की अपील की है। कुंजर कैटकों में महकमे फ्लोरिकल्चर की जानिब से बनाई गई पब्लिक पार्क में बैतुल खला का फुकदान पाया जा रहा है, जिससे लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों ने यहाँ पब्लिक पार्क में बैतुल खला को असरन और तामीर करने और पानी की सप्लाई को फराहम करने का मुतालबा किया। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक आज डीसी ऑफिस कुपवाड़ा में एक मीटिंग हुई, जिसमें तंबाकू नोशी पर काबू पाने से मुताल्लिक गौर खोज किया गया। मीटिंग में आला अफसरान मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान पर जोर दिया कि तंबाकू नोशी को कंट्रोल करने के लिए आवाम में बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम शुरू करें। आज पुंछ के मेधर में एक सड़क हादसा पेश आया। एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हुआ। इस हादसे में 2 नौजवान शदीद
जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल में दाखिल किया गया। शाही हमदान कॉलोनी कदीम ईदगाह बारामूला में आतिशज़दगी के वाक़े में अब्दुल मजीद का रिहायशी मकान जलकर खाकतर हो गया। मकामी नौजवानों और फौज ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन घर और सामान को बचाने में देर हो चुकी थी। आग के मुतासरीन ने जिला इंतजामिया और LG से अपील की कि दुख की इस घड़ी में इस गरीब खानदान की मदद की जाए ताकि वो बर्फबारी से पहले अपना घर बना सकें। वहीं राजौरी के थाना मंडी में इलाके में भी आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स का घर मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिस्वजीत कुमार सिंह, जो जिला किश्तवाड़ के तरक्याती कामों और दीगर मुतल्लका मामलात की निगरानी के इंचार्ज सेक्रेटरी भी हैं, ने सब डिवीजन पडर का दौरा किया और तरक्याती प्रोजेक्टों का मुआयना किया और इन प्रोजेक्टों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम BK सिंह ने हफ्ते को भद्रवाह शहर और उसके आसपास के मुख्तलिफ स्कूलों का मुआयना करने के लिए भद्रवाह का दौरा किया। टीचिंग फैकल्टी, इंतजामी अमला और तलबा और PRI के नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी के अरकान से भी मुलाकात की। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।